السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند شاہی مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کی مادر ملکہ، ڈچس اینڈ ڈیوک آف سسیکس، یعنی شہزادہ ہیری اور میگن مرکل. You have made me sit with that woman. That woman is your daughter-in-law. Not at all. انگریزی بول بول کے کھانا خراب کیتا پیا مائی یہ میگن غرقلے ہے سر. اسے ٹائم تے بندہ دماغ نو سکون آن دے نا 24 گھنٹے ہی سب پینٹ اور لندن فلا پینٹ ہے تے میری ساس میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن توبہ توبہ جی میں گرما خراب ہویا ہوندا. شرم کریں، یہ بات ہے کرنے والی. سن لیا پھر اس لگڑ بگڑ دی بچی نو. بیٹر اینڈ بیٹر. اچھا میرا خیال ہے کہ 1.5 منٹ دے انگریز سر. ارے میں تمہیں بول چڑھوا. آفتاب یہ ہمارے رائل بچے ہیں، رائل. جی کبھی زندگی میں انگلی تک نہیں اٹھائی، اوئے بھی نہیں کہا. اب دیکھو کس گھٹیا انداز میں بولتے ہیں. وقت بدل گیا ہے نا، وقت بدل گیا ہے. اب آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا ملکہ عالیہ. وقت نہیں بدلا، بلڈ چینج ہو گیا. بلڈ نیچ لوکاں دی اولاد، اوہو پلیز. کٹیا لوکاں دی اولاد، ungroomed, uncultured, uncouth. مائی رام نہ بیٹھا، میں تے سارے نول دینا ہر شے. سر مجھے شہزادہ بیچارہ ڈیسنٹ لگ رہا ہے. ویل ڈریسڈ تو بڑا کم از بس کپڑے ہی کپڑے نے وچوں سارے. یہ بھی ویسا ہی ہے. میں کی دساں، میں تے آپ سوچنے بھی دوڑ جاواں. آفتاب اوپر سے ٹائم چیک کیا آپ نے؟ میرا ہسبینڈ فلپ بیمار تھا، اس وقت میرے پوتے کو یہ بھگا کے لے گئی. میں کہاں جاؤں، کہاں اپیل کروں؟ لیٹ می نو. ظاہر ہے بہت اذیت ناک لگا ہوگا آپ کو، بہت ٹارچرس ہوگا، کیوں کسی اور ملک کی شہریت لے رہے ہیں. ماں تو وہ بدھائی ملک جو آپ کا سبجیکٹ ہے. ماں تو بدھائی نہ تھی سکا. آفتاب سجی سجی رات روان دیا، وہ چین بھی کون تھا بچے. کی کہہ رہی ہے ویسے؟ ساری ساری رات روتی ہیں، کہتی ہیں مجھے چین نہیں ہے. بس کر مائی تو بس بہت ہوگی. کینچی کی طرح زبان چل رہی، just like scissors. جوانی ہن بولی ہے میں تیری خاطر مارتی ہے. مک جاواں میں کتے بیاہ کر لیا میں. پرنس نے سانگلے بیاہ کر. سانگلے والی بھی اتنی انکوتھ نہیں ہوتی ہوں گی، انگرومڈ. اور کیا کہا تھا مادر ملکہ نے؟ انکلچرڈ. اے ان کلچر تو بھی پورا شیطان ہے نا، مجھے پتا. میں نے کیا کیا؟ آ جڑا کروڑ کے کیا ان کلچر. نہیں آپ پیاری ہیں، میں تو آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا لیکن وہ کوئین ہے نا، وہ ہماری بھی کوئین ہے. اے میری ساس دی نہیں ہوئی، میری نہیں ہوئی، یہ کسی دی نہیں ہو سکتی. لیکن سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سر کیٹ بھی رہ رہی ہے، سارا بھی رہ رہی ہے، اس سے کیا تکلیف ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ تم اسے لے کر کیوں نکل گئی باہر؟ اصل لڑائی کیٹ تے سارا دی ہے. میں تنوں دساں کیا؟ وہ میرے خلاف پڑکاؤندیاں. کس کو؟ ایس بڈھے فلودے نو. اور یار بہت ہی بدتمیز ہے. بال بال بچے ہیں. میرے نصیب سڑ گئے. کاشا آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ تھوڑ وے انتریا کی کہن رہی ہے. دیکھو میری بات سنو. شہزادہ لاڑدا ہے میرے خیال. دیکھو اے پیار ہے میرا عشق ہے، محبت ہے. مینو ڈالر پیسہ مینو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. میں صرف ادھر خوش ہاں. دادی پلیز پلیز مینو جین دیو. او ہلی بول انی دیا. بھئی واہ، یہ ہے ڈیوک اینڈ ڈچس آف سسیکس. کمال ہے بھئی. وے کیفی ہاں جی رول گئی بہن تیری. جناب مینو اس جوڑے نال اختلاف ہے. ہاستے واسطے کارے جس عورت نے آ کے نکھیڑے پاجتے نے. وے کھوتیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ بالکل. آپ مجھے غلط لگ رہی ہیں. آپ نے کیوں چھوڑا وہ گھر؟ ڈش اور مڑوی چھوڑے ویکھے نا، ساڈا دا کام ہے مت دینی، رلتے رہنا چاہیے. ارمان تے لگ دے، افسوس تے لگ دے. ارمان تے لگ دے، افسوس تے لگ دے. گر جائیں گی آپ. بندہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڈاوے، بچہ بڑا ہو کے منہ نہ لاوے. ارمان تے لگ دے، ارمان اچھا ٹھیک ہے.
नहीं पी गिनो धी मेरी पीता घिना मैं दवाई खांदियां हूं वेले भी पींदियां लेकिन बार बार पीवा तो मेरे को वनना भी ता पाਉਂਦਾ है ना सिंधी भी बोल रही हैं, सराइकी भी बोल रही सर, उर्दू भाई वाह, क्या शानदार मादर मलका है। अम्मा तो सब परेशान न थी वो ए जे जी रहे सन वो जी चैसन नी कसबा गुजरात रे तू एडी ना उथे बैठ के औंतरी मेरे खिलाफ करन रही है की तन है सोच मेरा क्या हाल करेंदी हो से। इस लड़ाई झगड़े के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब मीम्स आई हैं भाई, कमाल है। सर थोड़ा सा बताइए तो सही, ये क्या मसला चल रहा है? बस ठीक ठाक रह रहे थे जी, अचानक अलहदा हो गए। पता चला जी शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। आप पर इल्ज़ाम है जी क्वीन पे, आप इंतहाई नस्ल परस्त वाक़ हुई हैं। उसे इम्प्योर कहती हैं क्योंकि उसकी वालदा अफ्रीकन है जबकि वालिद अमेरिकन। उसको मिक्स्ड ब्रीड कहकर शर्मिंदा करके मुख्तलिफ तरीकों से बिलिटल करने के हजार तरीके आते हैं इन्हें। वो आगे से रिबेलियस थी। उसने कहा कि आपको कभी किसी ने चुप ही नहीं कराया, मेरी सास के साथ आपने बुरा सलूक किया कि वो अल्टीमेटली मौत के मुंह में चलेगी। अब अगर मेरे बारे में आपके ये ख्यालात हैं तो मैं वैसे ही जा रही हूँ, घर ही छोड़ के दोनों, और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया कनाडा। मिल जाना सानू होर वीजा थोड़े दिनों तक। लेकिन सर वो कैसे मिलेगी? नेशनलिटी अगर कनाडा की ले रही है तो ओथ तो मलका को उठाना पड़ेगा इनको। हाँ जी, इसलिए कि कनाडा भी मलिकाई के अंडर है, कॉमनवेल्थ का मुल्क है। ते गल सुन वीरा जी, मैंने पाकिस्तान की नेशनलिटी दे, मैं नहीं इत्थे रहना। और पाकिस्तान भी इन्हां दे अंडर है। ये माई ने किथे किथे खलारा पाया रब दी सौ। सर जस्टिन ट्रूडो तो वैसे ही बड़ा फैन है मलका का। ओ संतरे ने मैंने भी ऐसे ही पासे लाया। अच्छा, अब ये पैंतरा बदल जाती हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपके अंदर वो अजीब सा एक महल्ला वापस आ जाता है। जो गुस्सा चढ़ेगा ना, गुस्सा मैं मरना नहीं आई। बोल तू भी कुछ बोल अंतरिया कंजिया। सही थी नहीं पे तेन पता वाल होन लवाए ने उतले नवीद वफाक लो वेंदा पे आफ्ताब एनू कोई लत्थी चढ़ी कोई नहीं। वही वाह, जांगली भी ये 5वां एक्सेंट है जो मलिका ने चेंज किया। भाई मैनू तो जनराके दी लगी है। धुर धुर मेरी ट्रेनिंग हॉलीवुड तो हुई है। एक वेब सीरीज है सूट्स। बस सर आपको नहीं लगता कि ये जो असल मसला है वो ये है वो फ्रीडम का, क्योंकि ये हॉलीवुड से ताल्लुक है इसका। मेगन जी जी एक्ट्रेस है। मैं हमेशा गुजारिश करता होता हूँ, हमेशा, अब भी करूंगा कि कैट पीपल आर कैट पीपल, डॉग पीपल आर डॉग पीपल। अगर आप और तरह के लोग हैं ना तो आपको इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अपने लेवल के लोग सिलेक्ट करने चाहिए रिश्तेदारियां करते हुए। बिल्कुल सही। आपको क्या जरूरत है, आप रॉयल फैमिली में क्या क्या मिला रॉयल फैमिली में? डायना का आना तो समझ आता था ना, दैट वाज ब्लू ब्लड। आप बिल्कुल ही उठ के आ गई हैं और बस ऊपर से आपके अंदर रिजिलियंस है, आप एक रिबेलियस एटीट्यूड वाली हैं। अब या तो उस वक्त सोचती ना, अब आकर थोड़ा सा मैनरिज्म अडॉप्ट करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर, एक रिगैलिटी है वो पैदा करने की कम से कम कोशिश ही करें। मुझे नहीं समझ के इनका बनेगा क्या। जो मीम एक बड़ी दिलचस्प आई थी वो क्या सर? ये थी कि मेगन बैठी है और मलिका इसको इस तरह करके ना अपनी तरफ मतवज्जो करी है और ऊपर बहुत सारी टनल्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ टनल्स, और नीचे लिखा मेगन पिक अ टनल। नो ये भी आफ्ताब मेरे ते इल्जाम आई। वो कैसे? शी डाइड अ नेचुरल डेथ। हाउ कम? वो खुद भी टुन थी, उसका ड्राइवर भी टुन था, बाकी रही सही कसर पापारात्सियों ने कर दी। आन हम मेरे गया पापाराक्सी मैं पुठे ना डांगते थे। और वो तो बेचारी शरीफ खातून थी, वो तो बेचारी डर के भाग गई। ये खुद एक्ट्रेस है, ये अब डायना की तरह। डायना तो बहुत मासूम थी। आपने तो $7 मिलियन लिए हैं उस इंटरव्यू के। पता है, मुबैना तौर पर $7 मिलियन वो जो ओपरा विनफ्री ने दिए इन्हें। यही मैं हैरी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ। बेचारा क्या करे, उधर मोहब्बत है और इधर खानदान। ਉਹ ਕਾਸ਼ਾ हाँ जी, ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ। छोरे कोई यहाँ पैदा कर आपदे विच। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ।
اچھا جی آپ سال میں 2 برتھ ڈیز مناتی ہیں؟ Yes, by the grace of God. ایک تو 21 اپریل وہ ان کی برتھ ڈے ہے، اچھا جی. اور دوسرا ان کی کارنیشن، وہ ڈیٹ بھی مغلز بھی یہی کرتے تھے، ایک آپ کا یوم ولادت اور ایک یوم تاج پوشی. ان سم کیسز وہ قمری بھی مناتے تھے اور شمسی بھی مناتے تھے. اچھا جی برطانیہ کی تمام بطخیں اور ڈولفنز ملکہ کی ملکیت ہیں. واہ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰੂ ਆਪਣੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੱਸ ਔਂਤਰੀ ਤੂੰ ਸਰਕਸ ਖੋਲਣੀ ਆ. سر میں نے سنا کوئین کو فٹ بال کا بڑا شوق ہے. بہت فٹ بال کی تو بہت شیدائی ہیں. ڈیوڈ بیکہم کی بڑی فین ہے. جی بیکہم کی بہت بڑی فین ہے. آفتاب پلیئر تو تمام گھنان لیکن ڈیوڈ بیکم جڑی گال کہیں میں کون تھائی آج شاٹوں تھانے. انہیں کبوتر بازی کا بڑا شوق ہے. ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ پورے محل دے لوگ خلیفہ جی کہندے نے. سر خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کبوتر بازوں کا ایک طرح سے ایک رینک ہے جو بڑا ہائیسٹ سٹیٹس ہوتا ہے نا جو کبوتر بازی میں، وہ خلیفہ ہے. جیسے پہلوانوں کا بھی ایک بڑا ٹاپ سٹیٹس ہوتا ہے. کبوتر بازی کی، گھڑ سواری کی بہت شوقین ہے، فٹ بال کی بڑی شوقین ہے. صبح صبح جب اٹھتی ہیں تو بیگ پائپر انہیں اٹھاتا ہے. واہ واہ اس کی آواز جب کانوں میں گونجتی ہے ان کی نا بیگ پائپ کی، جی تب یہ اٹھتی ہیں. یہ برطانیہ کا واحد کیریکٹر ہیں جنہیں ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ مالکہ ہے. اور سر ڈرائیونگ کے دوران اگر کسی کو گاڑی کے نیچے دے دے تو ان کو امیونٹی بھی حاصل ہے. جی امیونٹی تو وہ تو خیر ڈپلومیٹس کو بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ رینج روور چلاتی ہیں. یہ ہنٹنگ کی بہت شوقین ہے. سر ابھی ان کی ایج کیا ہے؟ 95 ہونے والی ہیں. ہاں ایک چھکے دی مار مائی جان چھڑا مار تے جا. اور یہ ایسی کوئین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی ملک میں 12 سے زیادہ وزیر اعظم دیکھے ہیں، جن میں ونسٹن چرچل بھی شامل ہے، اور جنگ میں بطور نرس فرائض انجام دیے ہوئے. سر ویسے یہ اپنی لائف میں کیسی خاتون رہی ہیں کوئین؟ بڑی اگریسو، پوزیسو اینڈ ویری امپریسو. 97 میں ملکہ لاسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی اور بڑی آؤ بھگت کی گئی تھی. پاکستان چونکہ اب کامن ویلتھ کا ممبر ہے اس لیے ہماری بھی ملکہ ہے. مائنڈ نہ کیجیے گا یہ تھوڑا بہت جو شغل مذاق، یہ بڑی خوبصورتی ہے ان لوگوں کی، بہت لبرل ہیں، برداشت کرتے ہیں. دیکھیں برطانیہ میں ایک ٹی وی شو چلتا ہے اسپٹنگ امیجز، کس حد تک وہ نہیں اتر آتے لیکن یہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہیں. جی جی. اچھا اپنی بیٹی کا نام سنا ڈیانا رکھو گی؟ ਇਹਦੀ ਚੜ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਈ ਦੀ ਚੜ ਚ. او واہ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੀਰ. ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਨਿੰਜਾ ਮਾਈ ਅੰਤਰੀ ਮਾਰ ਪਾ. آفتاب what is this? دس از کالڈ کارما. ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਡੀ ਰੱਖਣਾ. بڑی دور کی سوچی. ਡੋਡੀ ਖਾਂ ਢੋਲਕ ਨਵਾਜ਼. وہ ڈوڈی الفائد ہے، the famous Egyptian businessman. کیفی جی باجی اجڑ گئی پیر. کوئی بات نہیں، آپ بات مان لیں اپنے ہسبینڈ کی. چلی جائے واپس. ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ پتا. پیار کرتا ہے آپ سے. اور ہے بھی بیچارہ 3 سال چھوٹا. یہ بالکل بیبی سا لگتا ہے اس کے سامنے. یہ ہے ہی میرا بیبی. بیٹے انہوں تے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لاکھ لعنت تیرے منہ. آفتاب اتنے ارمان سے میں نے شادی کی تیاریاں کی. جب اس کو بیاہ کے لے آئے تھے تو دروازہ بکنگم پیلس کا بند کیا، سارے فیملی ممبرس رویل یو نو، تب میں نے ڈانس کیا تھا اسپیشل. اچھا. یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. آفتاب میں نے کھلو کے سٹیپس کیے تھے. یو ہیو نو آئیڈیا. اچھا. لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا. لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا. آپ یہ نہ کریں، آہستہ آہستہ رہے، آپ کھل جائیں گی. Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. جیو کاشا. خبر ہے کہ دنیا کی تیز ترین مرچ کھانے والی خاتون ایک مرتبہ پھر مقابلہ جیت گئی. یہ 2014 سے آنورڈز لگاتار جیت رہی ہے. اس کا نام ہے سڈ، برطانیہ کی ہے، اور اس کا نام اب ڈال دیا گیا ہے انبیٹیبل سڈ. اور یہ وہاں پہ ایک کلب ہے، کلفٹن چلی ایٹنگ کلب.
ऐसी ऐसी खौफनाक मिर्चें वहाँ पे रखी जाती हैं, हालांकि इनाम की रकम पता कितनी है? कितनी सर? $170। लेकिन वो कहते हैं कि इसके अंदर जो थ्रिल है ना, वो चैलेंज है, पैसे नहीं है। सर इसकी कोई क्वांटिटी होती थी या एक ही खाती थी? तो इस मुकाबले में डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सबसे पहले अपने स्मॉलेस्ट हीटिंग यूनिट से स्टार्ट करना होता है और मैक्सिमम तक जाना होता है। तो जो हम आम मिर्च खाते हैं घर में, उसकी जो हीटिंग यूनिट होता है वो 2500 से लेके 3000 तक होता है, और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी आई थिंक 2 मिलियन है। लेकिन ये मुकाबले में कितनी खाती हैं? सर ये रखी जाती है वहाँ पे, सारी मिर्चें होती हैं, तकरीबन 10 से 15 किस्म की मिर्चें होती हैं। सर वो लोगों की कंडीशन देखने वाली होती है, आंखों से, मुंह से, नाक से पानी जा रहा होता है, दूध के गिलास साथ रखे हुए होते हैं, साथ वो पी रहे होते हैं, और लिटरली लोग मरने वाले होते हैं। ना हो सकता है कोई मरा भी हो। वो एक फिल्म मुझे याद है, डम एंड डमर, उसमें वो जो विलन होता है वो धौष सा लंबा चौड़ा, तो उसका अल्सर होता है पेट में, तो ये उसको गलती से खिला देता है बहुत सारी चिलीज, बाद में पता चलता है वैसे ही मर जाता है। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। आपको पता नहीं है कि वो चलती फिरती कुक बुक है। एक दफ़ा उकाशा ने पाए बनाकर खिलाए थे, सुभान अल्लाह। उकाशा वो आप पाए बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं? वो एक ही दफ़ा बने थे बस, अब दोबारा नहीं बनेंगे। जी वो दोबारा नहीं बनेंगे। हाथ कट गए आपके? मैं आपको लेके देता हूँ 6 पाए। सर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम पाए ले आएंगे बना देना, सर इतनी मेहनत से बनते हैं वो। सर आप शौकीन हैं हरी मिर्च के? मैं हरी मिर्च बहुत ज़ौक़ शौक से खाता हूँ, और लाल मिर्च में सिर्फ दड़ा मिर्च जो सिलवट्टे पे बने। अच्छा सर, हरी मिर्च नुकसान नहीं देती, लाल मिर्च साबुत जो है वो नुकसान देती? जी नुकसान देती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए ना। लेकिन जितनी लाल मिर्च डलनी है अब वो डालें जो देसी खालिस है। बस आपने ऑमलेट भी बनाना है जी तो दड़ा मिर्च से बनाएं। वो कैसे सर? वो कैसे, आपको नहीं पता? अगर बटर के अंदर पीसी हुई दड़ा मिर्च आप थोड़ी देर के लिए भुनें, उसकी खुशबू इस कदर शानदार होगी, आप अंडे को भूल जाएंगे, आपकी ख्वाहिश होगी इसी के साथ खाना खाएं। मक्खन नहीं ना है सर हमारे पास, इशू तो मक्खन का है। अंडे भी हैं। अंडे भी कौन से अंडे? सर हम तो जंगली अंडे नहीं। अगर जंगली अंडे नहीं है ना तो फिर जो मर्जी मिर्च डालो, जो मर्जी ऑयल डालो, इतना तरद्दुद क्यों करते हो? अगर तरद्दुद करना है तो फिर हक अदा करो। सर को लेटेस्ट ऑमलेट की कोई रेसिपी? मक्खन हो गया, जंगली अंडा हो गया, और अंडा भी खालिस जंगली, नॉट नकली देसी, खालिस जंगली अंडा जो पीला जर्द हो। दड़ा मिर्च हो गया, सब्ज मिर्च, मिर्ची नहीं, बारीक वाली नहीं, देसी। जी जी हो गई। हल्दी, लहसुन, हो गया सर। प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, हाँ सब्ज मिर्च बारीक बारीक काट लें, अच्छा जी। और उसको अंडे में डाल के, और अंडा अच्छी तरह फेंट के, 4 या 6 या 10 जितने मर्जी अंडे बनाने, अच्छी तरह फेंट लो। बटर पैन में डालो, वो जब कलकने लगे उसके अंदर फिर आप दड़ा मिर्च जो है उसको फ्राई करने लगे। बिल्कुल ठीक। नमक और हल्दी आपने अंडे में डाल देनी है, उसमें मिर्च नहीं डालनी। यहाँ पे मिर्च वो थोड़ी सी अपना रंग चेंज करेगी, ब्राउनिश होगी ना, तो इस सारा महलूल उसके अंदर डाल दो और उसको हिलाओ। थोड़ी देर बाद उसको टर्न कर लो, लाइट ब्राउनिश होना शुरू होगी, सिमर पे लगा दो, हल्की आंच, उसके ऊपर 2 अदद वो स्लाइस रख दो। स्लाइस किसके सर? चीज के। वाओ। और गार्निश करो थोड़ा थोड़ा हाँ जी कोरिएंडर, धनिया, और उसको सिमर पे मजीद उसको ना फ्लफी सा होने दें। फिर उसके अंदर करें 4 हिस्से, हाँ जी पराठे के ऊपर रख के जी सर। तो मेहमान को सर्व कर दें। मेहमान साले हमारे उनको दे, इतनी मेहनत लगा के जंगली अंडे मांगे हमने, ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਬਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਡੇ ਲੈਣ। रंगीला साहब आप खाते हैं घर में? क्या है जहर? सर मिर्च कब से हमारे फूड का हिस्सा है? कहते हैं कि अबाउट 9 to 10,000 ईयर्स पहले इसे एफ्रोडेजियक समझा जाता था,
बड़े कुश्ता या नुस्खा समझा जाता था हाँ जी वो कि जी बड़ी तुर्श और बड़ी जहरीली चीज़ है, अरे सब्ज मिर्च किवें खानी चाहिए है। कच्ची खाएं। सर कच्ची तो है ही, कच्ची के अलावा कैसे? अगेन बहुत लाजवाब तरीका है कि आप घी डालें, देसी घी या मक्खन, उसके अंदर कटी हुई मिर्च, उसके अंदर कट लगाया हो जी, और उसके ऊपर पकाएं। जब उसकी रंगत चेंज होने लगे उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल दें, वाह, उसको उतार लें और लीमू उसके ऊपर अच्छी तरह क्या कहने, निचोड़ें। गरम गरम रोटी, बहुत जबरदस्त क्या बात है, गरम गरम रोटी, सही कह रहे हो। फॉर अ चेंज खाया करें ये चीज़ें, हाँ जी सर, ये बहुत लाजवाब चीज़ें हैं। सिर्फ खा खा के गोश्त और प्रोटीन्स और ये नेचुरल चीज़ें हैं, इजी टू मेक हैं, रेडी मेड एक तरह से हैं। घी वाली रोटी के साथ भी बहुत मजा। घी वाली रोटी खाएं, खुश खाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। घी वाली रोटी के साथ तो हनी साहब कोई भी चीज़ खाएं ना। और फिर पराठा अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से। आपने कहा था ना कि पराठा एक नहीं खाना चाहिए, कम से कम 9-10 खाने चाहिए। नहीं, पराठे जितने मर्जी खाएं, लेकिन उस दिन खाएं जिस दिन आपने फिर बहुत चलना हो। सर कुछ लोग तो रमज़ान में सहरी के टाइम खाते हैं तो खा के सो जाते हैं, वो नुकसानदेह। इससे बड़ी जहालत खाने पीने के मामले में और कोई नहीं होगा। पराठा खा के मतलब दौड़ लाए, बेहतरीन। दौड़ ना लगाएं यार, वॉक करें। नहीं सर, पैसे नहीं ना देते। बदी नज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदी नज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे कोहाट। ये खैबर पख्तूनख्वा की एक इंतहाई अहम तहसील और बंगिश कबाइल के पश्तूनों का अहम मरकज़ है। 19वीं सदी में ताज बरतानिया और मकामी कबाइल के दरमियान इस इलाके के लिए लातादाद लड़ाइयाँ लड़ी गईं। यहाँ पर पश्तो और हिंदको बोली जाती हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक बुद्धिस्ट राजा कोहाट ने इस शहर को आबाद किया था। तारीख़ में कोहाट का तफसीली तज़किरा बाबरनामा में मिलता है, जो बाबर की बायोग्राफी है। उसकी ये बाबरनामा, तुज़किए बाबर और चीज़ है, ये बाबरनामा है, और वो तुज़किए नहीं है, तुज़के। उसकी ये बाबर से ना घबरा, ए मरास। क्या कहा है? ए मरास, ये तो चलती है तुझे ढोलक भी जाने। 1834 में सिख गवर्नर अवतार सिंह सांध्यावाला ने कोहाट को फतह करके सिख अंपायर का हिस्सा बनाया। 1848 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों पर मुकम्मल फतह पाई तो कोहाट अंग्रेज़ों के ज़ेर इंसराम आ गया। कोहाट छावनी की बुनियाद 1874 में रखी गई। 1924 में यहाँ कम्यूनल राइट्स, फ़िरका वाराना फसादात फैल गए, जिस पर गांधी जी ने मरण भ्रष्ट रख के अपील की इत्तेहाद और अखुवत की। तो ये मरण भ्रष्ट क्या है? ये तादमे मर्ग जिसको कहते हैं ना, भूख हड़ताल करके कि मैंने रोज़ा रख लिया है, मैं तो अब जान से जाऊंगा अगर तुम बाज ना आए तो। यहाँ के सयाहती मकामात में टांडा लेक और टांडा डैम 1967 में ये डैम बना था और लोग सयाहत के लिए यहाँ पे जाते हैं। फिर यहाँ पे है कोतल फेजेंट्री, ये भी वाइल्ड लाइफ का एक तरह की सेंचुरी है। यहाँ पर बोटानिकल और ज़ूलॉजिकल रिसर्च होती है। कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं। कोहाट रेलवे स्टेशन की बुनियाद 1897 में रखी गई और 1902 में ये फंक्शनल हुआ था। ये वो जगह हैं जिन्हें यहाँ का हिस्टोरिकल लैंडमार्क आप कह सकते हैं। आपको गुज़श्ता 200-300 साल की तारीख, उसका एक गाइडेड टूर मिल जाता है। फिर ISSB की वजह से भी ये जगह बहुत मशहूर है। इंटर सर्विसेज बोर्ड जो है, ये फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रिक्रूटमेंट सेंटर ये है, मरकज़ ये है। अच्छा जनाब, कोहाट टनल ये बड़ी मशहूर है यहाँ पे। ये तकरीबन 2 किलोमीटर्स तवील टनल है जो चिगना पहाड़ों के बीच में से बनाई गई है और इसे पाक जापान दोस्ती की
दरख्शां अलामत समझा जाता है। वाह। यहाँ पर एक पुराना बस स्टैंड है जिसके बिल्कुल करीब ठंडे मीठे पानी के चश्मे हैं। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आइए मशाहीर की तरफ। जी सियासी मशाहीर तो बथेरे हैं, लेकिन हम चूँकि सियासतदानों को अवॉइड करते हैं। इफ्तिखार हुसैन शाह, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे। फिर अहमद फराज शायर जी। तो अहमद फराज का कोई एक शेर तो होना चाहिए। अहमद फराज मुझे जितने अजीज हैं, उनका एक नहीं, उनके 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े जरूर वाह। वो कहते हैं कि नौहा गरों में दीदाए तर भी उसी का था, मुझ पर ये जुल्म बारे दिगर भी उसी का था। वाह वाह। देखा मुझे तो तर्के ताल्लुक के बावजूद, वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का था। लेकिन इधर जो तो है नहीं फराज, वो मक्ते में आता है। हर कोई गीत उनका कुमशु। अब फिर मैं आपको उनके कुछ मक्ते ना सुना दूं? देख लो तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब मर्जी यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या होता है? सर मैंने वैसे इख्तरा की थी कि वो क्यों नहीं उसमें नाम फराज, तो बस ठीक है, मैं समझ गया इसमें नहीं था। इसको मक्ता कहते हैं। मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर का नाम या तखल्लुस आए। जी जी। मतला वो शेर होता है जो पहला गजल का पहला शेर, और गजल का आखिरी शेर जरूरी नहीं कि मक्ता हो। मक्ता वही होता है जिसमें तखल्लुस या नाम आए। इन्नी देर च शेर मुक जाना। हिराना साहब चुप होइयो तुसी। अबे इतने बड़े आदमी की बात हो रही है, बीच में बोले जा रहे हो। लदी कसम में लगता मैं पागलों की बस लेके जा रहा और सामने खाई च मैं डिगना है। देखो डिश, और देखो थथ, है देखो गंज, और पीछे फक, और अपना नहीं बताया खच। सर फराज साहब नज़म दे शायर अच्छे सन या गज़ल दे? फराज ने नज़में कह रखी हैं अच्छी, लेकिन गज़ल बहरहाल उनकी गज़लें ज़्यादा मयारी हैं। सर कहते हैं नज़म भी उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं, लेकिन कम जो उस कैलिबर की। मतलब ईद कार्ड एक मुख्तसर सी नज़म है, 6 अशार है। हाँ जी। अच्छा मैं अब सुनाऊंगा। जी जी सर सुनाएं। ईद कार्ड, भूला बिसरा ईद कार्ड आ गया होगा, तो जिस पे उन्होंने बहुत उम्दा नज़्म, शायद उस ईद कार्ड के पीछे ही लिख के भेज दी हो। वो कहते हैं, तुझसे बिछड़कर भी जिंदा था, मर मर कर ये जहर पिया है, जो कुछ गुजरी जैसी गुजरी, तुझको कब इल्जाम दिया है, और अपने हाल पे खुद रोया हूँ, खुद ही अपना चाक सिया है। कितनी जां का ही से मैंने तुझको दिल से महव किया है, सन्नाटे की झील में तूने फिर क्यों पत्थर फेंक दिया। ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। अटक नहीं था, कोहाट। इन्हें शेर सुना छड़े, दिमाग ही घूम गया। और वहाँ पे कोई दरिया वगैरह नहीं है? इसके बिल्कुल करीब है एक दरिया। कौन सा दरिया? द माइटी इंडस। इसके बिल्कुल साथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जो करीब तरीन है ना, वो अटक है। तो अटक शिकारियों की जन्नत है। जी सर। आप छोटे छोटे रिवरेट्स और चश्मे इतने हसीन हैं, झीलें हैं बहुत खूबसूरत। वहाँ पर एक मकाम आता है, आप ताहद्दे नज़र वो लगता है दरियाई इलाका है, और उसका आखिरी सिरा दरिया सिंध है। तो आप टॉप पे खड़े होकर देखते हैं ना, तो फिर बताया जाता है कि जी इसके बिल्कुल करीब आगे कोहाट शुरू हो जाता है, और इसी जगह से दरिया काबुल उसमें गिर रहा है। दरिया काबुल पीछे से बड़ा तगड़ा दरिया आ रहा है, और वो गिरता है माइटी इंडस में। हर दरिया माइटी इंडस में गिरता है। सर ये इंडस जो है ये तिब्बत से मेरे ख्याल से आता है। जी तिब्बत से आ रहा है। हाँ जी। और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ, जम्मू के इलाके से होता हुआ, ये कारगिल के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। मैं हर तीसरे दिन बताता हूँ ये। यार तुम इतने कुंत ज़हन हो। मैं दोबारा पूछ रहा था। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, आपको रिवीजन का, दोबारा उसको रीचेक करने का, डबल चेक करने का शौक है। इस बेचारे को क्या पता। सारे तीजे दिन ही डबल चेक करने लग पैंदा। हुण मैनूं याद सी सारा कुछ भी, उत्तों कारगिल तो निकलदा है जहाज। एवं कहिए जहाज ही हो, दरियावां दा जहाज ही, महामुरू की हो, महापुरखू की जहाज। फिर मिला समंदर। पता क्या कहना चाह रहे, ये परत सिंधु कहना चाह रहा था, मुरखरू। अच्छा जी, खाबे, टांडा डैम की फ्राइड फिश। जी सर। बादामों वाले चपनी कबाब, वेरी जूसी, वेरी थिक,
एंड वंडरफुल। और ख़ास तौर पे खान जमान के यहाँ के छल्ले कबाब। सर कबाब मिलेंगे कहाँ से? ये दर्रे खान कबाब हाउस है। सर को मटन नहीं खाते? है मटन के लिए काका जी होटल। काका जी बेहतरीन कढ़ाई मिलेगी आपको, शनवारी मिलेगी। सर यहाँ कोई मॉडर्न रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है? आपने क्या सुशी खानी है? सुशी जिड्डा दो आप। सर कोई चाइनीज वाइनीज? हांगकांग रेस्टोरेंट है यहाँ। वाह वाह। सर मीठे में कुछ नहीं है यहाँ पे? कोहाट के अमरूद। क्यों, क्या है अमरूद को? सर मीठा खाना डिश। ये अमरूद ज्वेलरी नहीं है, ये खाने के लिए होते हैं। अमरूद बड़ी कमाल चीज है सर। और हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल साथ शर्कपुर, क्या शानदार अमरूद है। सर जी उकाड़े का भी बड़ा मशहूर अमरूद है। हाँ उकाड़ा का भी अच्छा। सर मलीर का अमरूद भी बहुत मशहूर है जी। जेड़ा उन्होंने माड़ा या किया ना जी का मतलब है डिश। जैसे मखड्डी हलवा एक कोहाटी हलवा भी नहीं होता? मीठे में कोहाट का मखड्डी हलवा, आपको याद है ना मखड्डी हलवा? याद है अच्छी तरह। अच्छा, इत्तेफाक से मखड इज वेरी क्लोज टू कोहाट। डाउन स्ट्रीम आप आए ना, उसके बिल्कुल साथ है, जैसे मैंने अभी बताया, जिला अटक। तो अटक में मखड शरीफ, मखड जो जगह, ये दरिया सिंध के किनारे पे वाक़ है। और यहाँ का हलवा मखड्डी आप खा चुके हैं? हाँ जी। बेशुमार दफ़ा खा चुके हैं जी सर। वो फिर साथ साथ चलता दरिया सिंध के। मियाँ वाली, काला बाग, लैया तक मखड्डी हलवा बहुत पसंद किया जाता है। और बड़ा सीधा सीधा सूजी का, तो सूजी को बस ट्रीट करना होता है, अदरवाइज आम हलवे की तरह है, लेकिन मखड्डी इज़ वे अबव। क्या बात। टेस्ट भी और उसके अंदर जो मुकव्वियात है ना, हाँ जी। खास तौर पे वॉलनट। सर वही तो नहीं भूल रही। वॉलनट के बगैर, वॉलनट भी रोस्टेड होता है, देसी घी में, बटर में रोस्टेड वॉलनट, रोस्टेड कैशूनट, पिस्ताशियोज, कमाल। एंड सर कैरमल फ्लेवर। और कैरमल तो फिर उसमें बनता है ना, खुद बनाया जाता है जी। देसी तरीके से। ऐसे ही जैसे आजकल पॉपकॉर्न्स को कैरमल कोटिंग जो मिलती है, उससे उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। सर क्या बात है। मुर्शिदाबाद के पकौड़े। मुर्शिदाबाद के पकौड़े और नान। हा माशा सलामत, मैं आपके लिए नान पकौड़े लाया हूँ। अच्छा, वो खुद खुश हो रहा है, मजा ले रहा है। सर वो पीछे से आवाज ये ढेश शो। मुर्शिद दे पकौड़े। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ को दम कराओ, फिर पकौड़े खाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पकौड़ा खोलो ਵਿੱਚੋਂ ਤਵੀਜ਼ निकलता। कतिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਉੱਥੇ ਧਮਾਲ ਪਾਓ, मुर्शिद पकौड़े फ्री दे।